کہانی 1980 میں برطانیہ کی ایک ریسرچ سوسائٹی نے تحقیقات شروع کر دی کہ لندن میں کس قدر مکانات ایسے ہیں جو آسیب زدہ ہیں اور وہ کون کون لوگ ہیں جنہوں نے پراسرار واقعات اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ چنانچہ ایک سوال نامہ تحریر کیا گیا اور تقریباً 17,000 شہریوں کو بھیج دیا گیا، جن میں سے وصول ہونے والوں میں سے 5,316 نے تو یہ جواب دیا کہ انہیں کسی ایسے حادثے سے کوئی واسطہ نہیں پڑا، جبکہ 1,680 نے جواب دیا کہ انہیں اس قسم کے واقعات سے واسطہ پڑا ہے۔ جن مکانات کے آسیب زدہ ہونے کی اطلاع ملی تھی ان میں برکلے اسکوائر کا مکان نمبر 50 بھی تھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس مکان میں ایک ایسی چیز دیکھی جاتی تھی جو انسان تھی اور نہ ہی جانور۔ بس اس وقت سے یہ بھوتوں کا مسکن مشہور ہو گیا۔ جو لوگ اس میں رہتے تھے خوفزدہ ہو کر بھاگ گئے اور ان کے بعد جس نے اسے کرائے پر لیا اسے اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑے۔ واقعات یوں بیان کیے جاتے ہیں کہ بھوتوں کا مسکن مشہور ہونے سے پہلے یہ اس علاقے کی سب سے اچھی عمارت خیال کی جاتی تھی، پھر اس پر خوف کے سائے پھیلتے چلے گئے۔ ان سب چیزوں کی ابتدا یوں ہوئی کہ اس میں رہائش رکھنے والے ایک شخص مسٹر ڈیو نے اپنے ایک بھائی کو، جس کا دماغی توازن درست نہیں رہا تھا، اس مکان کی ایک کوٹھڑی میں بند کر دیا۔ یہ دیوانہ شخص اس قدر مغلوب الغضب اور وحشت ناک تھا کہ کوئی بھی اس کے نزدیک جانے کی جرت نہ کر سکتا تھا، یہاں تک کہ اس کی خوراک بھی ایک نلکی کے ذریعے اندر پہنچائی جاتی تھی۔ یہ کہنا مشکل تھا کہ جو بھوت اس مکان میں دیکھا جاتا تھا وہ اسی پاگل آدمی کا تھا، کیونکہ اسے تو نچلی منزل میں بند کیا گیا تھا، جبکہ بھوت دوسری منزل کے بیڈ روم میں نظر آتا تھا۔ ایک مشہور رسالے مے فیئر نے 1888 میں اس مکان کے متعلق لکھا تھا، برکلے اسکوائر کے مکان نمبر 50 میں کم از کم ایک کمرہ ایسا ہے کہ جسے دیکھ کر دل و دماغ پر ہیبت طاری ہو جاتی ہے اور ماننا پڑتا ہے کہ کسی مافوق الفطرت چیز کا اثر اس مکان میں ضرور ہے۔ یہ مکان مدت سے خالی پڑا ہے، البتہ ایک چوکیدار اور اس کی بیوی اس میں اب بھی رہتے ہیں، مگر صورتحال یہ ہے کہ وہ دونوں بھی آسیب زدہ کمرے میں جانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ انہوں نے اس کمرے میں تالا ڈال دیا ہے جس کی چابی ایک گمنام شخص کے پاس ہے۔ وہ کبھی کبھی اس گھر میں آتا ہے اور پراسرار کمرہ کھول کر چند گھنٹے قیام کرتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے۔ آسیب کے متعلق بھی بہت سی تعویلیں کی گئیں، مثلاً کسی نے یہ افواہ پھیلائی کہ اصل میں اس مکان میں ایک بچے کا بھوت ہے جو سسک سسک کر روتا دکھائی دیتا ہے۔ دوسری افواہ یہ بھی تھی کہ بالائی منزل میں ایک پاگل شخص کا بھوت نظر آتا ہے جو کسی پیغام کے انتظار میں عقل و خرد سے بیگانہ ہو کر مر گیا تھا۔ ایک افواہ یہ تھی کہ اس مکان میں ایک لڑکی تھی، اس نے اپنے ایک عزیز کی 10 درازیوں سے تنگ آ کر نیچے چھلانگ لگا دی اور مر گئی، اب اس کا بھوت مکان میں بھٹکتا پھرتا ہے۔ ان کے علاوہ کچھ اور کہانیاں بھی مشہور تھیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے ایک بھی درست نہ تھی۔ اس کے بارے میں درست بات اگر کسی شخص نے بتائی تو وہ لارڈ ہے۔ لارڈ اور اس کے خاندان کو ایسے واقعات سے اس قدر واسطہ پڑا تھا کہ لندن والے اسے بھوتوں کا ماہر خصوصی خیال کرنے لگے۔ لارڈ نے بتایا کہ ایک دن میں پستول سے مسلح ہو کر اس کمرے میں سویا، ساری رات کوئی قابل ذکر واقعہ رونما نہ ہوا، لیکن صبح ہونے سے ذرا پہلے کوئی چیز اڑتی ہوئی آئی اور کمرے میں داخل ہو گئی۔ میں نے فوراً اس پر فائر کیا جس سے وہ زخمی ہو کر گری۔ میں اس کی طرف بڑھا لیکن وہ فوراً ہی غائب ہو گئی۔ جب لارڈ سے اس چیز کا حلیہ دریافت کیا گیا تو وہ اس کا جواب نہ دے سکے۔ 19ویں صدی عیسوی میں 2 اخباروں نے اس بھوت کا حلیہ بیان کیا۔ یہ گمنام بلا اصل میں ایک بہت ہی مکروہ شکل مخلوق ہے جس کی زبان منہ سے باہر لٹکتی رہتی ہے، دانت بہت لمبے اور چہرہ الو کی طرح گول مٹول ہے۔ دوسرے اخبار نے لکھا کہ اصل میں یہ بلا ایک عجیب جانور نما ہے جس کی آنکھیں اور کئی ٹانگیں ہیں اور وہ کوئی جہنمی مخلوق معلوم ہوتی ہے، مگر حیرت یہ ہے کہ بلا صرف مکان نمبر 50 میں ہی دکھائی دیتی ہے۔ لارڈ کے علاوہ 2 اور اشخاص نے بھی اس مکان میں ایک رات قیام کیا۔ ان میں سے سر رابرٹ علاقے کے نوجوان نواب زادہ تھے، ابھی انہوں نے شادی نہ کی تھی، زندگی کے اوقات زیادہ تر سیر و شکار میں بسر کرتے اور اپنے طبقے میں بہت عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ ایک دن دوران گفتگو میں بھوتوں کا ذکر چھڑا تو سر رابرٹ نے سختی سے بھوتوں کے وجود کا انکار کیا اور ان لوگوں کا مذاق اڑایا جو ایسی چیزوں پر اعتقاد رکھتے ہیں۔ اس پر اچھی خاصی بحث چھڑ گئی، یہاں تک کہ ان کے دوستوں نے تہیہ کر لیا کہ وہ ثابت کر دیں گے کہ بھوت کوئی خیالی مخلوق نہیں،
ये गुफ्तगू जारी थी कि कमरे में वो साहिब दाखिल हुए जिनकी मलकियत में बर्कले स्क्वायर का मकान नंबर 50 था। उन्हें देखकर सब दोस्त खुशी के मारे उछल पड़े और सर रॉबर्ट से उनका तारुफ कराते हुए कहा कि ये साहब उसी मकान के मालिक हैं जिसमें भूत मौजूद है, और भूत ऐसा कि पूरे इंग्लैंड में उसके मुकाबले का कोई भूत नहीं। फिर उन्होंने बेंसन यानी बर्कले स्क्वायर मकान नंबर 50 के मालिक से कहा कि वो अपने तजर्बात से सर रॉबर्ट को आगाह करें, लेकिन कबल इसके कि वो जवाब में कुछ कहते, एक नौजवान चिल्ला उठा, सर रॉबर्ट, आप एक जुर्रतमंद और खिलाड़ी किस्म के आदमी हैं, क्यों ना आप आसेब ज़दा मकान में एक रात बसर करें और भूत परीत के नजरिए को गलत साबित कर दें, मगर मैं ऐसी खौफनाक मुहिम की कभी इजाजत ना दूंगा। मिस्टर बेंसन जो उस मकान के मालिक थे, उन्होंने जल्दी से कहा, सर रॉबर्ट आकिलो बालिग शख्स हैं भाई, वो अपना बुरा भला बखूबी सोच सकते हैं। अगर कोई हादसा हो गया तो उसकी तमाम तर जिम्मेदारी खुद उन पर होगी, हम में से कोई भी तुम्हें इल्जाम ना देगा। क्यों सर रॉबर्ट, आपकी क्या राय है? उसी नौजवान ने कहा, मैं इस मुहिम को सर करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। सर रॉबर्ट बोले, बल्कि मैं तो शर्त लगाने के लिए भी तैयार हूँ कि मैं उस आजेब ज़दा मकान से सुबह से ही सलामत बरामद होऊंगा। बहुत खूब, बहुत खूब। आसपास बैठे लोग ताली बजाकर बोले, अब बताओ मिस्टर बेंसन, आप क्या कहते हैं? अरे मुझे तो अब भी इस तजवीज से इत्तेफाक नहीं है, बेंसन ने कहा, और वो खासे खौफजदा दिखाई देते थे। उनमें से एक शख्स बोला, भाई अगर किसी तरह का खतरा है तो मैं हिफाजती इंतजाम करने को तैयार हूँ। सर रॉबर्ट मुस्कुराते हुए गोया हुए कि इस तकलीफ की कोई जरूरत नहीं, मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकता हूँ। बेंसन बोले, हजरात, गो सर रॉबर्ट अपनी मर्जी से मेरे गरीब खाने को नवाजने का इरादा रखते हैं, मगर मुझे महसूस हो रहा है कि ये कोई माकूल बात नहीं है। बहरहाल जो आप लोगों के दिल में आए वो करें। तो तुम बिला आखिर तैयार हो ही गए? सर रॉबर्ट ने कहा। बेंसन बोला, जी हाँ, मगर इस शर्त पे कि हम सारी रात जागकर पहरा देंगे, आप मुसल्ला होकर मकान में दाखिल होंगे और जब भी कोई खतरा महसूस होगा घंटी बजाकर हमें इत्तला कर देंगे। मुझे ये शर्त मंजूर है, लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि मुझे घंटी बजाने की कोई नौबत नहीं आएगी और न हथियार वगैरह इस्तेमाल करने की। इस गुफ्तगू के बाद तय पाया कि ठीक 3 दिन बाद 9 बजे रात को सब दोस्त मकान नंबर 50 बर्कले स्क्वायर में जमा होंगे और वो खाना भी वहीं खाएंगे। बिला आखिर वो घड़ी आ पहुंची। सब दोस्त उस पुरअसरार मकान में पहुंच गए और इधर उधर की बातें करने लगे। अगरचे वो खुद को मुतमईन जाहिर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सभी के हवास आसेब ज़दा मकान की वजह से मुतासिर थे। थोड़ी देर बाद सब खाने के कमरे में गए। खाना बहुत लजीज और कई किस्म का था, मगर सारे मेहमान खामोशी से इस तरह खा रहे थे जैसे महज फर्ज अदा कर रहे हों। वो जल्द ही खाने से फारिग हो गए। सर रॉबर्ट ने अपने मेजबान बेंसन से मुखातिब होकर कहा, अच्छा अब मुझे उस कमरे में चला जाना चाहिए जिसमें मुझे आज रात गुजारनी है। सब मेहमान अपने मेजबान की क़यादत में दूसरी मंजिल पर पहुंचे। उन्हें वो तारीखी कमरा दिखाया गया जिसे तकरीबन 10 बरस के बाद सर रॉबर्ट के लिए खोला गया था। ये कमरा तारीख सा था और उसका फर्नीचर पुराने जमाने की याद दिला रहा था। कमरे के वस्त में एक बड़ी सी मसहरी बिछी हुई थी जिस पर साफ शफाफ बिस्तर लगा था। मसहरी के दाएं बाएं तपाइयों पर लैंप रखे थे और सरहाने की तरफ घंटी की रस्सी लटक रही थी। बेंसन ने इसी रस्सी को हिलाया तो नीचे घंटी बजी। उसने सर रॉबर्ट से कहा, अगर कोई खतरा महसूस हो तो मेहरबानी करके रस्सी खींच के ये घंटी बजाना ना भूलिएगा, हम फौरन आपकी मदद को पहुंच जाएंगे। ठीक है, सर रॉबर्ट बोले, मगर आप भी ये ना भूलिएगा कि जब तक 2 बार घंटी ना बजे आप ऊपर आने की तकलीफ ना करेंगे। सर रॉबर्ट को कमरे में छोड़कर सबने शब बखैर कहा और नीचे आ गए। सर रॉबर्ट ने कोट उतारकर खूंटी पर लटकाया और मसहरी पर दराज हो गए। उन्होंने भरा हुआ पिस्तौल अपनी दाहिनी तरफ रखा और बाईं जानिब घंटी की रस्सी। आतिशदान में आग खूब जल रही थी जिससे कमरा गर्म हो गया था। उनका इरादा ये रात जागकर गुजारने का था ताकि नंबर 50 बर्कले स्क्वायर का मुशाहिदा कर सके। उधर उनके दोस्त नीचे की मंजिल में चुपचाप बैठे घंटी बजने का इंतजार कर रहे थे। इस हालत में क्लॉक ने रात के 12 बजाए और उसके साथ ही ड्राइंग रूम में घंटी की आवाज गूंजने लगी। सब दोस्त होशियार हो गए। फिर घंटी की आवाज दूसरी बार इस कदर जोर से गूंजी कि मालूम होता था कि टूट कर गिर पड़ेगी। ओ मेरी खुदा! बेंसन चीख मारकर ऊपर की तरफ भागा और उसके पीछे बाकी तमाम दोस्त भी रवाना हो गए। वो दरवाजे के नजदीक ही पहुंचे थे कि बंद दरवाजे के पीछे से पिस्तौल के फायर की आवाज सुनाई दी। बेंसन ने झपट कर दरवाजा खोल दिया। क्या दर्दनाक मंजर था! हसीन और जमील सर रॉबर्ट का आधा जिस्म बिस्तर पर और आधा बिस्तर से नीचे लटका हुआ था।
सीधे हाथ से छूटकर पिस्तौल दूर जा गिरा था और बाएं हाथ में घंटी की रस्सी थी। सर रॉबर्ट की आंखें तो खौफ से बाहर निकल आई थीं और मुंह भी खुला हुआ था। ये ऐसा भयानक मंजर था कि बहादुर से बहादुर आदमी का पित्ता पानी हो जाए। बेंसन ने आगे झुककर नब्ज टटोली तो वहां क्या रखा था? बर्कले स्क्वायर के भूत ने सर रॉबर्ट की जान ले ली थी। बेंसन पर सर रॉबर्ट की मौत का इस कदर असर हुआ कि उसने नंबर 50 बर्कले स्क्वायर को हमेशा के लिए खैराबाद कहने का तहैया कर लिया। चुनाचे 40 साल तक किसी जीरू ने उस मनहूस मकान में कदम न रखा, मगर जब ये मकान अपनी वीरानी का 50वां साल मनाने वाला था तो 2 मल्लाह इसमें दाखिल हुए। हुआ यूं कि एक बहरी जहाज वेस्ट इंडीज के दौरे से 1 साल बाद पोर्ट साउथ पहुंचा। ये दिसंबर का महीना था। बंदरगाह पर पहुंचकर तमाम अमले को 2 हफ्ते की छुट्टी दे दी गई ताकि वो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक क्रिसमस की खुशियों में शरीक हो सकें। ये दोनों मल्लाह इसी जहाज से ताल्लुक रखते थे। उन्होंने लंदन पहुंचकर कई दिन पीने पिलाने का शुगल जारी रखा। जब जरा होश आया और हिसाब किताब किया तो मालूम हुआ कि पैसे बिल्कुल खत्म हो चुके हैं और अब घर पहुंचना भी मुहाल है। दोनों के घर लंदन से काफी फासले पर थे। सर्दी बढ़ती जा रही थी और रात गुजारने का मसला अहमियत पकड़ता जा रहा था। चूंकि दोनों की जेब खाली थी, लिहाजा फैसला हुआ कि घूम फिर कर कोई ऐसा ठिकाना तलाश किया जाए जहां मुफ्त में रात बसर हो जाए, और उसी तलाश में वो बर्कले स्क्वायर के उस मकान के सामने पहुंच गए। यकलख्त उनकी नजर सड़क के बाएं जानिब उठ गई। एक 2 मंजिला मकान पर किराए के लिए खाली है का बोर्ड लटका हुआ था। ये नंबर 50 बर्कले स्क्वायर था। वो दोनों अहाते के बाहर खड़े होकर जंगले से उचक उचक कर अंदर देखने लगे और ये भाई भाई करता तारीक मकान शबबाशी के लिए उन्हें बहुत मौजू मालूम हुआ। दोनों छलांग मारकर अंदर दाखिल हो गए। मार्टिन ने जेब से एक मोमबत्ती निकाली और उसे रोशन करके मकान का जायजा लेना शुरू कर दिया। ब्लेंडन बावर्ची खाने में जा निकला जहां सर रॉबर्ट की मौत से कबल डिनर तैयार हुआ था। वहां बर्तन और सामान अब तक बेतरतीबी से पड़े थे। मार्टिन और ब्लेंडन की समझ में आ गया कि ये मकान काफी अरसे से वीरान पड़ा है। वो अब आगे बढ़े। खाने का कमरा और हॉल सब खाली पड़े थे। एक कोने में एक मोटा चूहा दौड़ता फिर रहा था। और वो देखो उस चूहे को, किस कदर मोटा हो रहा है, और उसने तख्ते को काट कर कितने सुराख कर दिए हैं। मार्टिन ने कहा। चलो अच्छा ही है, हमें आग जलाने के लिए काफी लकड़ी मिल जाएगी। ब्लेंडन बोला। चलो ऊपर चलें। मार्टिन ने राय जाहिर की और फिर दोनों ने ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। गर्दो गुबार से अटी हुई वो सीढ़ियां उन दोनों के बोझ से चीख उठी। खतरा पैदा हुआ टूट ही ना जाए, लेकिन वो रुके नहीं और बिला आखिर ऊपर उस कमरे में पहुंच गए जहां सर रॉबर्ट की मौत वाक़ई हुई थी। उस कमरे को देखकर उन्हें हैरत हुई। ये कमरा निस्बतन साफ सुथरा और फर्नीचर से मुज़य्यन था, और तो और बिस्तर से आरास्ता पलंग भी मौजूद था। ये देखकर तो मार्टिन बहुत खुश हुआ और बोला, अब रात आराम से गुजरेगी। ब्लेंडन किसी अनजाने खौफ से परेशान था। कहने लगा, नहीं मेरे दोस्त, यहाँ से भागो, हमें यहाँ नहीं ठहरना चाहिए। तो क्या सर्दी में ठिठुर कर मरोगे? मार्टिन बोला। ब्लेंडन कहने लगा कि ऐसे वीरान मकान में कयाम करना अच्छा मालूम नहीं होता, और देखो यहाँ का फर्नीचर अजीबो गरीब किस्म का महसूस होता है। इस पलंग को ही देखो, ये तो इस कदर बड़ा है कि 4 आदमी इस पर आराम कर सकते हैं। भाई तुम तो बेवकूफी की बातें कर रहे हो, ये पलंग तो हमारे लिए बहुत मौजू है। आओ इस पर आराम करें, और हाँ, आतिशदान में आग क्यों ना जला दी जाए। ये कहकर मार्टिन ने पहले से रखी हुई लकड़ियों को इकट्ठा किया और आग लगा दी। कमरा गर्म होने लगा। मार्टिन बिस्तर पर दराज हो गया, मगर ब्लेंडन कुर्सी पर खामोशी से बैठा नाचते हुए शोलों को देखता रहा, लेकिन साथी के समझाने से वो भी बिस्तर पर दराज हो गया। अभी वो दोनों थोड़ी ही देर सोए थे कि यकलख्त ब्लेंडन ने झंझोड़ कर मार्टिन को नींद से उठा दिया। उसने वजह पूछी तो ब्लेंडन के लब हिल रहे थे, मगर कोई आवाज ना निकली। बहुत कोशिश से उसने अपना हाथ उठाया और कमरे के दरवाजे की तरफ इशारा किया, मगर मार्टिन को वहां कोई खास बात नजर न आई। मार्टिन ने नाराज होकर पूछा, बात क्या है, तुम क्यों डर रहे हो? तो ब्लेंडन की कुव्वते गोयाई लौट आई। वो बोला, खामोश रहो और सुनो। मार्टिन खामोश हो गया, मगर उसे कोई आवाज सुनाई ना दी। थोड़ी देर बाद ही किसी के कदमों की चाप सुनाई देने लगी। ऐसा मालूम होता था कि कोई शख्स सीढ़ियां ऊपर चढ़ रहा है। अब मैं समझा ये यकीनन कोई उचक्का है। उसने कमरे में रोशनी देखी तो उस तरफ चला आया। ठहरो, मैं देखता हूँ। अरे भाई, कौन है? मार्टिन ने ऊंची आवाज में कहा। उन्होंने सांस रोककर सुनना शुरू कर दिया। यहाँ तक आने वाले ने सीढ़ियां तय कर ली थीं। अब वो तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था।
फिर दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हो गया और जैसे ही आधा दरवाजा खुला कोई चीज अंदर आ गई। ब्लेंडन के मुंह से चीख निकली। उन दोनों ने पलंग से छलांग लगा दी और फर्श पर पड़े हुए पर्दे के डंडे उठाने लगे। एक साया नजर आया। ये साया किस चीज का था वो पहचान न सके। उन्होंने देखा कि बहुत बड़े बड़े पंजे उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। ये पंजे ब्लेंडन के बिल्कुल करीब पहुंच गए। उसने चीख मारी और डंडा लेकर खड़ा हो गया। मार्टिन छलांग लगाकर दरवाजे के बाहर जा पड़ा और फिर कई कई सीढ़ियां फलांगता हुआ नीचे उतरने लगा। वो हेल्प हेल्प पुकार रहा था और उसे कुछ पता न था कि उसकी मंजिल कौन सी है। होश उस वक्त आया जब वो एक पुलिसमैन से जा टकराया। पुलिसमैन को देखा तो वो बेख्तियार बोला, खुदा के वास्ते मेरे साथ आओ, मेरी मदद करो। वो बमुश्किल इतना ही कह सका और बेहोश होकर गिर पड़ा। पुलिसमैन ने झुककर मार्टिन को उठाना चाहा। उसी वक्त उसने मकान की ऊपर की मंजिल में किसी बहुत वजनी चीज के गिरने की आवाज सुनी और फिर खामोशी छा गई। पुलिसमैन ने मार्टिन को झंझोड़ कर खड़ा कर दिया और सख्ती से दरियाफ्त किया कि वो रात के इस आखिरी हिस्से में क्यों इस तरह फिर रहा है। होश में आकर मार्टिन ने पुलिस वाले को मकान नंबर 50 के अहाते की तरफ घसीटना शुरू कर दिया। उस वीरान और तारीक मकान को देखकर पुलिसमैन का दिल तो धड़कने लगा। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम यहाँ छुपे हुए थे? जी हाँ, हम इस मकान की ऊपर वाली मंजिल पर थे कि मेरे साथी पर कोई हमलावर हुआ। मार्टिन ने कहा। हमलावर कौन था? ये कहकर सिपाही ने अपनी टॉर्च रोशन की और जैसे ही टॉर्च की रोशनी फैली मार्टिन को अपने साथी की लाश नजर आई जो दहलीज पर पड़ी थी। बदनसीब ब्लेंडन का चेहरा और उसका जिस्म बुरी तरह से मस्क हो चुका था, जैसे किसी ने उसकी लाश को खूब नोचा हो। कहा जाता है कि लंदन की तामीरे नौ तक वो मकान उसी तरह आसेब ज़दा रहा। अलबत्ता ब्लेंडन के बाद कोई और मौत ना हुई क्योंकि किसी को भी उस मकान में जाने के लिए सख्ती से मना कर दिया गया था और फिर आसेब ज़दा मकान मशहूर होने की वजह से किसी ने उस मकान में कभी जाने की जुर्रत भी न की थी।